So last time we completed about development. Today let us start the next point, that is income and other goals. Means beside of income we need some other goals also. What are other goals? People seek things like equal treatment, freedom, security and respect. Means people need that beside of income they should get respect in the society. Equal treatment means there is no any discrimination or domination. The treatment means the behavior or the way of treating to the people should be equal for everyone. यानी हर किसी के साथ समान व्यवहार हो, कोई डिसरिगार्ड नहीं हो, इंसल्ट नहीं हो. Then after freedom, security and respect. They resent discrimination. All are important goals. So these all are the important goals beside of income. मीन्स पैसा पाने के अलावे और भी जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, जो लोग चाहते हैं वो यही सब है कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, रेस्पेक्ट हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी बात. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption. So, more income यानी ज़्यादा पैसे की आय, इससे कहीं ज़्यादा जरूरी ये सारी बात है. मतलब इनकम थोड़ा कम भी हो लेकिन ये सब कुछ हो जो लोग पाना चाहते हैं. मनी और मटेरियल थिंग्स that one can buy with. Very important fact. Very important fact. ध्यान से सुनना. Money and material things one can buy with it. Money or material things that one can buy with it. Money से बहुत सारी चीजें हैं जो हम खरीद सकते हैं. जाहिर सी बात है अपने लिविंग के लिए, अपने डेली लाइफ के लिए जो हमारा नीड से रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति हम मनी से कर लेते हैं, पैसा से खरीद लेते हैं. क्या क्या पैसे से खरीद सकते हैं सभी को पता ही है. लेकिन बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स. मीन्स इफ इट इज नॉट ऑब्वियस, सो there are some things that we can't buy with money and those we need. हमें उसकी जरूरत है but we can't buy money. In generally people say that money is enough, we can do everything if you have got enough money. पैसा है हम सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पैसा रहते हुए आपको नहीं मिलेगा. क्या है भाई? रेस्पेक्ट आप पैसा से नहीं खरीद सकते हैं. फेयर इन्वायरमेंट आप पैसा से नहीं खरीद सकते हैं. हाँ, इक्वल ट्रीटमेंट आप पैसा से नहीं खरीद सकते हैं. एक डिजीज फ्री एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट आप पैसा से नहीं खरीद सकते हैं. इफ somebody has fallen sick, he can get better treatment through money, but he can't be free through money. पैसा से आप चाहें कि एकदम बीमारी से हम आजाद रहे, हमको कोई बीमारी कभी हो ही नहीं, ऐसा नहीं होगा. हाँ, बीमारी हो जाने पर बेहतर ट्रीटमेंट आप जरूर करवा लेंगे. सो इन दिस वे, इफ इट इज नॉट ऑब्वियस देन जस्ट थिंक ऑफ योर रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot of our life. We can't measure easily, but we need in our life. So these are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Yes, very important fact. What cannot be measured
is not important. Means the thing that we can't measure is not important for us. बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, सोसाइटी में रहने के लिए चाहिए। जब हम एक बेटर लाइफ की बात करते हैं तो क्या सोचते हैं? अच्छा खासा इनकम हो, हमारा घर हो, बेटर एजुकेशन ले सके, ऐसा हो, घूमे फिरे खाए पिए, लेकिन और सब चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या नहीं सोचते हैं? ये इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में, डिग्निटी के बारे में, रेस्पेक्ट के बारे में, बेटर इन्वायरमेंट के बारे में, डिजीज फ्री लाइफ के बारे में, ये सब के बारे में हम नहीं सोचते हैं commonly. But these also are very much important. These are not measured but has got very much importance in our life. Is it clear to everyone? चलिए अब आगे, consider another example. This is the second example. Apart from income such as facilities for your family, working atmosphere the same. Pay attention. What other things are needed that we can't measure? We don't measure. Working atmosphere, you can remember we have discussed, you need a better environment to work. काम करने के लिए अच्छा environment चाहते हैं। और opportunity to learn. In another case, a job gives you less but may offer regular employment. Then after, another job may offer high pay but no job security. So these are security of job, fair environment, fair working place, etc. are also needed. Then after, similarly, so it is a point here, for development, people look at a mix of goals. So for development, here it is clear now that as we work, what is going on? What is the point here? Income and other goals. So now finally here is like a conclusion. For development, people look at a mix of goal. Means not only one goal. There are so many goals observed by us for our development. Is it clear? So it is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. Very easy and simple sentence, you can understand easily. Means women, if she has got a job, she is a working lady, she gets more importance in at her home. ज़्यादा भाई जॉब करने वाली है, पैसा कमा करके लाती है, इनकम करती है. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs. Yes, obvious. In case of women especially, it is seen that working place should be fair. होता है ना, किसी घर की औरत कहीं भी काम करने के लिए जाएगी तो भाई आदमी देखता है कि जगह ठीक ठाक है कि नहीं. एकदम कॉमन बात देख लीजिए, प्रैक्टिकल जो होता है, जगह ठीक ठाक है कि नहीं. कुछ लोग कहते हैं ना वो जगह लेडी के काम करने के लायक नहीं. कहाँ भाई? इन्वायरमेंट. यही बात है. Hence, the developmental goals that people have are not only better income. See, once again, not only about better income but also about other important things in life. So now here it is clear that there are so many goals beside of income. मतलब इनकम के अलावे और भी सिर्फ गोल ही नहीं है, बहुत सारा गोल है. कई एक गोल है जो हमारी जरूरत है, our requirements. Now national development. Let us see now national development. Till now we discussed about development, our development. Now national development. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of country's development. Different people
could have different as well as conflicting notion of country's development. Means countries, the notion of country's development is not same for everyone. It is the meaning here. हर आदमी के लिए एक समान नहीं है. तो क्या है भाई, डिफरेंट पीपल थिंक समथिंग डिफरेंट. अलग अलग लोग अलग अलग बात सोचते हैं. तो क्या है, लेट अस सी. कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? थिंकिंग ऑफ ऑल द पीपल. So, if there are conflict, how does one decide what would be a fair and just path to all? These are the questions regarding the same, regarding the opinion of the people regarding development of the nation. We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. So, answer of these questions is associated with the answer of national development. How to compare different countries or state? Different countries or state. Differentiate between two countries or differentiate between two states. When we compare things, different things, they could have similarities as well as differences. Very simple. When we differentiate between two, there are some similarities also as well as differences also. Let us look at the student in the class itself. How do we compare different students? Here, suppose just a very simple example. If you are told to compare the students in the class, and so what to do? How you will, what point should be, can be highlighted here? What the common student will think about comparison between the different student or comparison between the two students. अगर दो स्टूडेंट के बीच में अगर किसी को कह दिया जाए क्लास में भाई स्टूडेंट के बीच में कंपेयर कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, तो इन जनरली लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? जनरल वे में सबसे पहला हमारा ओपिनियन क्या होता है, क्लास में हम कोई बेटर स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं भाई, तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर हम सबसे पहले जाते हैं. क्लास का जो स्टूडेंट बेहतर परफॉर्मेंस देता है हम उसी को मान लेते हैं कि ही इज द बेटर स्टूडेंट इन द क्लास. But do you think that yeah it is correct? No. नहीं. पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अब बाकी क्वालिटी भी उसी तरह हाईलाइटेड है, तो we can't be go. Are you understanding me? Are you understanding my sense? The same is here. Let us see the example. For comparison between countries, the same. Now, here they differ in their height. So, what are the differences? In their height, health, talent, and interest. The healthiest student may not be most. से हेल्थ के ख्याल से आप किसी को कंसीडर कर लें, वो भी सही नहीं है. एकेडमिक कर लें, वो भी सही नहीं है. कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी किसी का बड़ा अच्छा है, डांस बड़ा अच्छा करता है, पेंटिंग बड़ा अच्छा बनाता है, म्यूजिक बड़ा सुंदर बजाता है या गाना गाता है, कहिए ही इज द बेस्ट वन, वो भी सही नहीं है. सो इन दिस वे, सो हाउ डू वी कंपेयर द स्टूडेंट? लेट अस सी. द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड. Pay proper attention, you may underline also. How to compare? The criterion we may use depend on the purpose of comparison. We use different criterion. Here is the main answer. We use different criterion to choose a sport team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Means single criteria is not enough. Different criteria are responsible for comparison. So usually we take one or more important characteristics. Simple. One or more. Either he is very much intelligent or very much handsome or intellect, whatever it is.
but that is not enough. So important character of person and compare them based on these characters, but actually it is not. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. This is the true development. This is true of development too. For comparing, it is the main here. Comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Did you understand? Yes or no? Did you understand? As we compare a student, so our one or two criteria is only there, but actually it is not enough. Different criteria are there. But in the same way, to compare a country, we mainly see what is the economic condition of a country. इनकम, पैसा, जिस कंट्री का जितना ज्यादा इनकम है, लेवल है, तो ऑब्वियसली इनकम लेवल ज्यादा होगा तो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेटर होगा. तो हम उसी को सिर्फ देखते हैं कि इफ द कंट्री इज इकोनॉमिकली बेटर, डेफिनेटली द कंट्री इज बेटर. बट डू यू थिंक दैट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम लेवल is the main criteria or the only criteria to finalize that a country's development? No, नहीं, ऐसा नहीं है. So countries with higher income are more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income, as I told just now, the same is written here. This is based on the understanding that more income means more of all that human being need, whatever people like and should have. Now, what is the income of a country? The income of a country is the income of all. Yes. Here is a very short question. Later you will get the question. एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम आगे होगा, नीचे दिया हुआ होगा एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम. तो द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री. तो व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री? इनकम ऑफ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी उस कंट्री के जितने लोग हैं सबको मिला करके जो इनकम होता है, उसी लेवल पर ना देखा जाता है कि इस कंट्री के का इनकम लेवल क्या है, यहाँ के लोगों का लाइफ कैसा है, किस कदर से लोग यहाँ रहते हैं, उनका मतलब इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये देखा जाता है. फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर. द सेम इज रिटन हियर. टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर. इफ यू वांट टू measure the country, total income is not enough. Comparison total income will not tell us an average person is likely to earn. Are all people in our country better off? Hence we compare the average income, which is the total income of country divided by total population. So here is the answer of question also. What is called average income? So what is average income? Average income is the total income of the country divided by the total population. यानी total income of country को total population से divide कर दीजिए, जो निकलता है वही आपका average income होता है, और उसी average income को per capita income भी कहा जाता है. Per capita income means income per head, यानी हर आदमी का एवरेज निकलता ये है. हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो निकला उतना ही सबका इनकम है, क्योंकि इनकम कभी सेम हो ही नहीं सकता है. ये बात तो सबको पता है, इनकम कभी सेम नहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लोगों की सैलरी अलग अलग होती है. डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, 4th ग्रेड स्टाफ, 3rd ग्रेड स्टाफ, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, कैजुअल वर्कर, रिक्शा ठेला वाले, सब्जी बेचने वाले, दुकान चलाने वाले, सबका इनकम अलग अलग है. तो इनकम कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, लेकिन एक एवरेज इनकम निकाला जाता है और उसी के बेसिस पर देखा जाता है.
So and the same, the average income is also called per capita income. In the World Development Report brought out by the World Bank, this criterion is used to classify countries. Countries with per capita income of US dollar 66,500 per annum is above in 2024 are called the higher income. Underline करते जाएंगे. Higher income, lower income क्या है? According to US dollar यदि इतना है, according to 2024 are called the income. High income rich countries and those per capita income of about US dollar 2,300 or less are called low income countries. High income countries and low income countries according to US dollar. According to 2024 based on US dollar. माने US डॉलर के इतना जो उस कंट्री के करेंसी के हिसाब से अब उसका वहां का जो वैल्यू जो भी हो, US डॉलर इतना के बराबर यदि है तो उसमें उसको क्या कहते हैं? पर एनम एंड एबव आर कॉल्ड हाई इनकम. US डॉलर इतना के बराबर यदि होता है तो उसको हाई इनकम मानते हैं, और पर कैपिटा इनकम US डॉलर इतना है या उससे कम है तो उसको लो इनकम वाला मानते हैं. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम. ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल. हम तो लो इनकम वाले लोग हैं शुरू से ही. अब तो हमारा इकोनॉमी कुछ बढ़ रहा है, 4th पोजीशन पर हम लोग चले गए थे, लेकिन बैड लक अभी हाल की जो कुछ घटना घटी हम लोग फिर से 6th पोजीशन पर आ गए हैं. हमारा एफर्ट है $5 ट्रिलियन तक जाने का, तो वो इनकम ऑफ द कंट्री है, लेकिन एवरेज इनकम में अभी भी कमी है हमारे यहाँ, क्योंकि अभी भी इतने सारे कैजुअल वर्कर लोग हैं, बीपीएल में जीने वाले लोग हैं, तो कमी तो है. US डॉलर 11,000 पर एनम. अब इसमें देखिए हमारा क्या कह रहा है, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2024 वाज जस्ट अबाउट US डॉलर 11,000 पर एनम. और एक बेटर इनकम के लिए कितना कह रहा है, याद है? 66,000 पर एनम. अब सोच लीजिए उसी हिसाब से, कहाँ 66,500 और कहाँ 11,000, यानी डिवाइडेड बाय 6 हुआ. हो रहा है ना, मैंने बहुत पीछे हैं. तो बात तो सही है. कॉमन पीपल के मामले में तो अभी हम लोग भले ही हमारा उतना $1 ट्रिलियन आगे जा रहा है कंट्री का इनकम, लेकिन एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम जो होगा या प्रैक्टिकली जो कॉमन पीपल का है एकदम जो हमारा लेवल है उसको देखने के बाद, now the next point, income and other criteria. Here is a chart, comparison between. So what did we learn? We learned the comparison between different countries. कंट्रीज के बीच में हमने कंपेयर देखा इकोनॉमिक लेवल पर. अब आइए अपने स्टेट में ही, कंट्री के भीतर, डिफरेंट स्टेट के भीतर में 3 स्टेट का दिए हुए हैं फॉर एन एग्जाम्पल. ये तीनों स्टेट आपका है हरियाणा, केरला, और तीसरा स्टेट आसानी से समझ सकते हैं, हम ही लोग हैं तीसरे में. और हमारा कंडीशन क्या है तो पता है सबको. आप अपने ही स्टेट को घूम करके पूरा देख लीजिए ना भाई. इंडिया से बाहर क्या जाना और अपने स्टेट से बाहर क्या जाना, पहले अपने स्टेट में ही तो घूम के देख लीजिए क्या कंडीशन है. ये भागलपुर टाउन देखने से काम नहीं होगा, है ना. तो so that in the same country India there are approximately 3 types of situation, regarding income also, regarding population also. दोनों मामले में 3 तरह का सिचुएशन है. What could these attribute? So when we think of a nation or a region,
we may, beside average income, think of other equally important attributes. What are these? Table number 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Let us see. देखिए क्या है आपका हरियाणा पर कैपिटा इनकम 3,25,759 अकॉर्डिंग टू 2023-24 में हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 3,25,759, केरला 2,81,001 एंड बिहार ये 3 लाख में पहुंच रहा है। ये 2 लाख के लास्ट ईयर है, 3 लाख के करीब करीब में है, 3 लाख से उतना पार कर गया। और हम लोग 3-2 तो छोड़ दीजिए, लाख भी टच नहीं कर रहे हैं। अब जरा सा आप ही अब समझ लीजिए कि इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कितना गुना हरियाणा आपसे आगे है और कितना गुना केरला आपसे आगे है। ये मोर देन मल्टीप्लाइड बाय 5 है और ये मोर देन मल्टीप्लाइड बाय 4 है और आप कहाँ है। तो समझ लीजिए कि हरियाणा के लोग कितने खुशहाल होंगे, केरला के लोग कितने खुशहाल हैं और आप कितना खुशहाल हैं। तो बिहार तो पुअर स्टेट शुरू से कहलाता है। और जबकि देखिए कितनी बदकिस्मती है, आपका सेकंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन गंगेटिक प्लेन हमारे यहाँ है। लैंड भगवान ने हमको इतना फर्टाइल लैंड दिया है, रिवर्स भी है हमारे पास, लेकिन देख लीजिए क्यों बैकवर्ड है हर मामले में। एजुकेशन की बात आए तो बैकवर्ड, मेडिकल फैसिलिटीज की बात आए तो बैकवर्ड, इनकम लेवल की बात आए तो बैकवर्ड, अदर डेवलपमेंट की बात आए, रोडवेज अलग अब तो बहुत कुछ बन रहा है अब तो, वरना क्या था। अदर डेवलपमेंट के मामले में लीजिए, एग्रीकल्चर में ही ले लीजिए, गंगेटिक प्लेन है लेकिन अभी तक एक प्रॉपर जो इरिगेशनल अरेंजमेंट जो प्रॉपर होना चाहिए या एग्रीकल्चर डेवलप्ड एग्रीकल्चर जो होना चाहिए है, अब तो फिर भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है, बहुत सारा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वरना और हम लोग के साइड का एग्रीकल्चर तो एकदम टॉप लेवल का एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो है कुछ हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तक फ्रीडम का इतना साल बीत गया। gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product as current prices for 2023-24. Roughly, we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. The figure is absolute clear. So that this means that an average a person in Haryana earned rupees such and such in 1 year, where an average a person in Bihar earn इतना। तो ये तो क्लियर है। अब यहाँ ये चार्ट देखिए लिटरेसी रेट, अभी तक तो हम लोगों ने इनकम के मामले में देखा था, अभी बताया ना एजुकेशन लेवल। देखिए एजुकेशन लेवल क्या है, शर्म भी आती है, खराब भी लगता है, लेकिन करें क्या, जो सच्चाई है उसको नकारा तो नहीं जा सकता है ना। देख लीजिए हरियाणा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2 ठो दिया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मीन्स न्यूली बॉर्न चाइल्ड बिटवीन 0 to 1 ईयर, यही होता है ना, 0 to 1 ईयर। पहले तो बहुत ज्यादा था, अब तो फिर भी कमी आई है, लेकिन अभी भी
इन द कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट, आपके स्टेट की स्थिति कंपैरेटिवली सेटिस्फैक्टरी नहीं है। पहले के की बात यदि करें तो हाँ ठीक है, सुधार हुआ है, लेकिन अगर आपके यहाँ सुधार हुआ तो दूसरे के तो और ज्यादा हुआ ना। तो अभी भी तो आप बहुत पीछे ही चल रहे हैं, दिक्कत ये है। तो दो यहाँ कंपैरिजन दिखा रहा है। पहला कंपैरिजन हम लोगों ने क्या देखा, इनकम के मामले में, और अब क्या देख रहे हैं, एक ही चार्ट में दो बात है। एक मोर्टेलिटी रेट, यानी 0 to 1 ईयर के कितने बच्चे मर जाते हैं जन्म लेने के बाद, और दूसरा लिटरेसी रेट। ठीक है, दूसरा लिटरेसी रेट। तो हरियाणा का देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, 28, और लिटरेसी रेट कितना है, 82। और नॉन अटेंडेंस रेशियो पर 100 पर सेकेंडरी स्टेज एज 15 to 17 टू इतना, ये 73। केरला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 6 ओनली, मतलब सम। लिटरेसी रेट 94, नॉन अटेंडेंस रेशियो 94, बिहार 27। आप हरियाणा और लिटरेसी रेट देख लीजिए, नॉन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में तो हरियाणा और बिहार में थोड़ा सा का डिफरेंस है, आप जरा सा आगे हैं हरियाणा से। लेकिन लिटरेसी रेट क्या है, वो उसका 82%, आपका 62%। अब देख लीजिए हरियाणा स्टेट का लिटरेसी रेट आपसे बहुत बेहतर है। और अभी यदि ये अकॉर्डिंग टू 2023-24 यदि बिहार में 62% लिटरेसी रेट है, 2017-18 में बिहार में 62% है, तब सोच लीजिए इस हिसाब से अभी आया है तो 74। फ्रीडम मिले हुए कितना साल हुआ, फ्रीडम मिले हुए 76 ईयर्स आपका हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट हुए 50 से लेकर के, आप छोड़ दीजिए फ्रीडम की बात, छोड़ दीजिए, जब से कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फर्स्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ 52 में, उसके बाद से ही जोड़िए जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, तो जितने साल, तो उस हिसाब से अभी तक में हम यहां तक पहुंचे हैं, वो भी लिटरेसी रेट। और लिटरेसी का मतलब क्या होता है समझ में आना चाहिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड, समझ में आ रहा है। तो अगर बिहार के मामले में हम सोच रहे हैं कि भाई 76 ईयर्स ये रन कर रहा है, इसमें अगर हमें कितना परसेंट गया, 74% है ना। अगर अभी प्रेजेंट लिटरेसी रेट जो है, तो अदर स्टेट का कितना है, उसका तो बहुत आगे निकल गया है, तो पीछे तो है, वही तो बात है। केरला 100% हो चुका था, फिर पता नहीं कैसे पीछे हो गया। अभी प्रेजेंट डाटा और आगे ही बढ़ा होगा, ये तो 2017-18 का है। तो कुल मिला जुला करके what does this table show? Now here let us see the explanation here. What does the table show? The first column of the table shows that in Kerala out of 1000 children born, 6 died, one completing 1 year of age. But in Haryana the proportion of children dying 28. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown. So in this way, just think of how dear you are to your parents, think of how everyone is so happy. So in this way, this is the condition. Now here non-attendance ratio
Table 1.4 shows that about 1/3 of the children aged 15 to 17 years in Bihar are not attending the school. Age 15 to 17 years, age group of 15 to 17 years in Bihar are not attending school in secondary classes. Secondary means 9, 10. तो 15 से 17 इयर्स के 1/3 स्टूडेंट आज भी आपके बिहार में हाई स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। सुनकर थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता होगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि 15-17 इयर्स के स्टूडेंट आज हाई स्कूल नहीं जाते हैं पढ़ने। सब तो हाई स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या देखते हैं? अपना सराउंडिंग देखते हैं, टाउन देखते हैं, मोहल्ला देखते हैं, यही देखते हैं ना। लेकिन बिहार के हर कॉर्नर में जा करके, हर वो रिमोट एरिया, रूरल एरिया में जा करके देखिए सिचुएशन क्या है। शहर का सिचुएशन देखने से नहीं होगा, गांव गांव में जाइए, दूर दराज में जाइए, बॉर्डर इलाके में जाइए, रिमोट एरिया, एकदम बैकवर्ड एरिया में जाइए, देखिए वहां क्या सिचुएशन है। वो भी आप ही के बिहार के रहने वाले हैं, जैसे आप हैं वैसे ही वो भी हैं। ये अलग बात है कि आप शहर में रह रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपके पेरेंट्स सिंसियर हैं, वो आपका केयर टेकिंग करते हैं, आपके ऊपर स्पेंड करते हैं। सारे बच्चे को यही अवेलेबल नहीं है, तो ये सच्चाई है। तो इन दिस वे public facilities, now public facilities, now we will learn what is going on. At least pay attention. So public facilities, as I told that money is not enough for everything. Let us see once again here. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Means once again, money is not enough. We can't buy everything with money. पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। The same, what are the things? Your money cannot buy you a pollution-free environment. Tell me yes or no. Are you satisfied? We can't buy a pollution-free environment through money. We can't buy a pollution-free environment through money. So unless you can, then after that environment or ensure that you get unadulterated medicine, unless you can afford to shift to a community that already has been these things, or you shift somewhere, so there the environment will be fair. Money may also not be able to protect you from infectious disease, as I told. कि पैसा आपके पास है, आप बीमार पड़ने पर बेहतर इलाज जरूर करा सकते हैं, लेकिन पैसे के बल पर आप उस बीमारी से बचे रहें, यह संभव नहीं है। तो इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए, फेयर सोसाइटी मिल जाए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, हाँ, ये सारा आप डिजीज फ्री रहें, ये सारा मनी से पॉसिबल नहीं है। पैसा से आप ये सारी चीजें नहीं खरीद सकते। सो वंस अगेन इट इज वेरी क्लियर दैट मनी इज नॉट एनफ फॉर एवरीथिंग एंड वी कांट बाय ईच एंड एवरीथिंग विथ मनी। ऑफ कोर्स पैसा सब कुछ नहीं है, हाँ पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है आज के समय के हिसाब से, लेकिन सब कुछ है ऐसा नहीं है।